सो गाइज, इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदे बहुत सारे हैं। ये आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है, ये आपके इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करता है। Obviously you can lose weight with it also, and in this scenario you're consuming less calories as well. I had made a video 3 years ago especially on this. I think you should check it out. I will link it. वर्ड ऑफ कॉशन, योर अगर आप इसको वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हो तो एक बार अपने डॉक्टर से या अपने न्यूट्रिशनिस्ट से ज़रूर चेक करो। एंड आई वुड हाईली रेकमेंड दैट ये प्लान करने के लिए भी प्लीज़ कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट, बिकॉज आप एंड ऑफ द डे ये नहीं चाहते हो कि कोई प्लान करते हुए आपको कोई डेफिशिएंसी हो जाए। आई वुड स्टिल से सीक प्रोफेशनल हेल्प, बट nevertheless let's look at some of the things you need to understand about intermittent fasting जो आपकी मदद करेगा to follow this. But firstly, as the name suggests, intermittent fasting means there are particular time slots for eating and fasting. तो एक होती है आपकी eating window, दूसरी होती है आपकी fasting window. और ये विंडोज़ का ड्यूरेशन डिफ़र कर सकता है। आप 12 आवर्स ईच कर सकते हो, 24 घंटे को आप कैसे डिवाइड करते हो डिपेंड करता है। But the most common is a 16-hour fast and 8-hour feeding window, which is something that I am following. Honestly, मुझसे भी ये 100% 16 hours नहीं हो पाते. I do it 5 days a week and 2 दिन मैं नहीं करती, and that's because I want to give my body a rest. And वैसे भी मैं फ्राइडे को उपवास रखती हूँ, तो वैसे एक मील खाया होता है, तो सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग my blood sugar is like really low and I need to eat. So I don't follow this throughout. But if you want some help in figuring out the timing, there's an app called Zero. जिसमें कि आप there's an app called Zero that you can use, and इसमें अगर आप अपना फास्टिंग का टाइम सेट कर दो तो आप इसे देख के भी अपने फास्टिंग और फीडिंग विंडो को मेंटेन कर सकते हो। ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करी बिकॉज मैं अपना फ़ोन बहुत कम चेक करती हूँ। सेकेंडली, अंडरस्टैंड दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट अ वेट लॉस प्लान, और इसे वेट लॉस के लिए आप कर रहे हो तो मैं आपको अगेन बोलूँगी कि प्लीज़ सीक अ न्यूट्रिशनिस्ट हेल्प, बिकॉज अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए कि कम कैलोरीज लेने के चक्कर में आपकी न्यूट्रिशन डाउन चली जाए। तो eating less calories shouldn't mean less of nutrition. Another thing to be mindful about is that intermittent fasting, सोच के कि मैं intermittent fasting पे हूँ, ऑलरेडी मेरी तो डाइट चल ही रही है तो मैं कुछ भी खा लूँ, that's also not right. intermittent fasting करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप कचरा खाओ या न्यूट्रिशियस मील ना लो और जंक खा लो. That's definitely not the idea. This diet plan can have this meal plan can have benefits. Fasting as such can have benefits, but again I would say it might not be for everyone, because बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लो ब्लड शुगर टॉलरेट नहीं होती, और ऐसे भी लोग हैं जिनके मेडिकल कंडीशंस ऐसे हैं कि लो ब्लड शुगर विल नॉट वर्क फॉर देम. सो प्लीज़ 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 कोई भी चीज़ डाउनलोड करके इंटरनेट पे ट्राई करने से पहले अपने डॉक्टर से, न्यूट्रिशनिस्ट से, किसी सही इंसान से जिसे उसके बारे में नॉलेज है, प्लीज़ एक बार ज़रूर पूछो. And if you need professional help from me and my team, you can always write to me and we will help you out with a proper diet plan, because we do an online course and this is the best time to do it. So please write to us if you need professional help. Even if you don't seek help from me, किसी और से लेना चाहते हैं लीजिए, लेकिन प्लीज़ किसी प्रोफेशनल के पास जाइए. Don't do this off the internet. And yeah, my rest of the diet is shared with you anyway. Good morning everyone. It's 7:30. I have just woken up. I'm gonna have a huge glass of water, and then I'm gonna do my morning activities, which is like journaling, a little bit of meditation, थोड़ा movement. लेकिन इस दौरान हम कुछ नहीं खाने वाले हैं. We'll just drink one big glass of water first, and then we'll follow it up with more glasses of water. So I have done my subah wala sara kaam, a quick workout also, and taken a shower and gotten ready, and the time is 12:05, almost 12 baj chuke hain. This is gonna be my first meal of the day, and these days I start my mornings with fruit. So the fruit choice today is a kiwi
ऑरेंज एंड अ पोमेग्रेनेट। लेकिन इसको प्रेप करते करते मुझे साथ में नेक्स्ट 2 मील्स की भी प्रेप करनी है, और आई थिंक मैं इसके बाद लूँगी बेसन चीला, एंड उसके बाद मैं सोच रही थी डिनर में बनेंगे आज राजमा चावल। सो दिस इज़ माई फर्स्ट मील ऑफ द डे, 3 फ्रूट्स। लंच की तैयारी चल रही है, सॉरी डिनर एक्चुअली। सो या आई एम गोना बी मेकिंग राजमा फॉर डिनर, और लंच में हम बेसन चीला ही खाएंगे, बट इसको भिगो देते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं बेसन चीला। As the chillas are being made, अब मैं अपनी चाय रेडी कर रही हूँ। A lot of you have asked me कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ। Basically, I make the black tea base and then I add soy milk to it, and that is gonna go with this one. So yeah. और ये जा रहा है मेरा फर्स्ट एक्चुअल मील, बट टेक्निकली सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट मील वाज फ्रूट्स। और अब टाइम हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 2 o'clock एंड आई एम ईटिंग दिस। चलिए लंच करते करते डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। इन ऑल ऑनेस्टी मुझे ऐसा लगता है कि हमने इसको एक मॉडर्न नेम दे दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग का, और ट्रेडिशनली इंडियंस ये हमेशा से करते आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप कभी भी सुनोगे पुराने लोगों को बात करते हुए, हमेशा बोलते हैं 2 वक्त की रोटी, बिकॉज अपने लोग 2 ही टाइम खाना खाते थे। मेरे नाना जी, आई थिंक ही वर्कड टिल द एज ऑफ 82 एवरी सिंगल डे। वो फैक्ट्री जाते थे 82 ईयर्स की एज तक भी, 10 किलोमीटर चलते थे रोज़, और उन्होंने अपनी सारी लाइफ इंटरमिटेंट फास्टिंग करी है। वो 2 टाइम खाना खाते थे। पहला मील उनका होता था सुबह मंदिर जाके वॉक करके वापस आके प्रेयर वेयर करके नहा धो के तैयार होके, देन द फर्स्ट मील यूज टू बी एट 10 o'clock एंड द लास्ट मील ऑफ द डे यूज टू बी फैक्ट्री से वापस आके, विच यूज टू बी लाइक 6-7। सो सारी उम्र उन्होंने हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग करी है। अब ये चीज़ जो है वो ट्रेंड में आ गई। आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज रियलाइज्ड दैट दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स, एंड उन्होंने रीपैकेज करके हम लोग को फिर से बेच दिया है। तो आई थिंक ये हम लोग को ट्रेडिशनली आता है। Now let's talk about what is the actual benefit of intermittent fasting. जो हम लोगों ने ये एक कन्वेंशनल सी डाइट बना ली थी है, हर 2 घंटे में खाना, हर 3 घंटे में खाना। उससे क्या होता है, there is nothing wrong in it and it works for a lot of people, but generally उससे क्या होता है कि आपकी ब्लड शुगर स्पाइक अप हुई, आपने कुछ खाया, उसके बाद ब्लड शुगर थोड़ी सी डाउन आई, आपने फिर कुछ खा लिया, फिर आपकी ब्लड शुगर स्पाइक अप हो गई। तो आप कंटिन्यूसली अपनी ब्लड शुगर को स्पाइक्स दे रहे हैं, आप उसे सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो आप फास्टिंग के टाइम पे अपनी ब्लड शुगर को डाउन होने देते हो। दिस इज वाई दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स वेल। जब आप फास्टिंग में जाते हो और आपकी ब्लड शुगर डिप होती है तो आपकी बॉडी के सारे पहली बात आपकी इंसुलिन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सेकेंडली आपकी इम्यूनिटी किक इन करती है। सो देर आर सर्टन बेनिफिट्स दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग हैज़ विच आर लाइक इवन साइंटिफिक एंड या सो इट्स नॉट दैट बैड टू डू इट। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आई डोंट प्रेफर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग बिकॉज मेरा डेली शेड्यूल ऐसा है कि मैं फास्ट नहीं कर सकती। बिकॉज आइडली जो आपका फास्टिंग पीरियड है उसमें अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो आपको लो ब्लड शुगर भी हो सकती है और यू कैन फील लेस एनर्जेटिक, यू कैन इवन डिप्लीट योर मसल्स यू आर वर्किंग आउट ऑन अ वेरी एंड ऑफ द फास्टिंग साइकिल। सो अगर करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग सो यू हैव टू बिल्ड योर लाइफ अराउंड इट, एंड फॉर मी it is very difficult to build my life around it because my active time would always fit in the fasting cycle which I don't want, इसलिए मैं ये कभी नहीं कर पाती हूँ। बट लॉकडाउन में मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नाइस टू डू इट। वन रीज़न इज़ बिकॉज मैंने एक मील तो गिव अप कर दी थी।
मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि एक मील कम खानी है, क्योंकि लोगों के पास खाने को नहीं है और मैं एक्स्ट्रा खा के थोड़े से स्पेस में घूम रही हूँ. देयर इज नो पॉइंट. मैं फिजिकली इतनी एक्टिव नहीं हूँ, लाइक आई मीन आई एम ट्राइंग टू बी, लेकिन फिर भी हम जब ऑफिस जाते थे तो यू वॉक अराउंड, आप 5-6 किलोमीटर रोज़ चलते भी थे और आप वर्कआउट भी करते थे, जिम में भी जाते थे, वेट्स भी लिफ्ट करते थे. बट नाउ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. सो नाउ आई फील दैट अगर मैं उतना ही खा रही हूँ तो आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई बॉडी. एंड मॉरली ऑल्सो इट मेक्स सेंस टू लाइक गिव अप वन मील, बिकॉज अगर हम कम खाएंगे तो हम पूरे के पूरे सप्लाई चेन पे स्ट्रेस कम डलेगा. सो या दैट वाज वन रीजन आई स्विच टू इट, एंड आई थिंक एवरीवन हु इज वाचिंग इट कैन गिव इट अ ट्राई. अगली चिट चैट करेंगे अगले मील में. बाय. सो मैं वर्कआउट ख़त्म कर चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ. इट इज़ 7:15 in the evening right now. Last meal of the day going in is my rajma chawal. I'll show you. My last meal of the day, rajma chawal and a little bit of salad. मैं खाना ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन डिज़र्ट खाने का मन था, इसलिए one slice of mango doesn't kill anyone. Thank you so much everyone for spending a day in eating with me. I hope you enjoyed this video, and like, share, subscribe. If you have any questions which are specific to intermittent fasting, don't forget to write to me at this email ID, and I shall see you next time. Bye. Hey Google, turn the lights off. Sure, turning off the living room.